So, good afternoon to all. Myself Ayush Kumar from second year EC department, and it's a great pleasure for me to introduce our speaker for today, Mr. Shashank Mishra, who is going to talk to us about his professional life. And this is a subject in which all of us are deeply interested into because our speaker is currently working into Amazon, and I'm sure we'll get to learn a lot of things from him. तो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें अपने स्पीकर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैं इतना भी तो मुझे पता है कि आप इस मीटिंग में आए हो तो आपको पता ही होगा, बट स्टिल आवर स्पीकर इज़ अ डेटा इंजीनियर एट Amazon and he is a ex McKinsey and ex Paytm employee, and he has pursued his MCA from NIT Allahabad, and he is a public speaker as well. He is a YouTuber and his channel name is e-learning bridge. And मैंने तो ज़्यादा ही बता दिया, मतलब नाउ I'd like to invite the speaker himself to tell us about his journey कि कब कैसे क्या हुआ, कैसे इन्होंने प्लान की सारी चीज़ें, कैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्होंने एग्जीक्यूट की चीज़ें और जो जो इनके ड्रीम्स थे उन्हें अचीव किया. सो ओवर टू यू शशांक भैया. Hey, thanks, Ayush. Thank you so much for the lovely introduction. And हाँ hey, guys, sure. myself Shashank, and yep, as Ayush said, I'm working as a data engineer at Amazon, and before that, worked for McKinsey, Paytm, and now, like in this pandemic, actually, yeah, it turned out really, really bad for everyone, and nobody actually wants to remember 2020. It's honest, we can Yes, understand, yes. but this lockdown given me opportunity to start my YouTube channel, and I was kind of guy who always followed this statement like being an engineer, it's our responsibility to give back to the community. It's not like we are just learning from the community. Whenever somebody is in good state, that you can give back to the community, whether your knowledge or to help someone or any kind of stuff, you should definitely do Yeah, yeah, that. of course. So in this lockdown, started my YouTube channel where I keep on inviting people from different backgrounds and mostly from tier 3 colleges, and those guys have cracked tech giants like Microsoft, Amazon, Google, Facebook. So they used to visit my channel and share all the interview experience of their respective companies, their preparation strategy, what kind of material and resources they have followed to prepare, like coding, CS core fundamentals, projects, open source, everything they used to talk about. So you can check my channel whenever you get time, Yes, yes. and I checked out your definitely channel. that, It was very, very nice. yeah, that would be really helpful. So Yes, yes. I know you guys, for me, like, to be very honest, your questions are really important, but before that I have like different things to share with you guys, like how I did it, and what did it take for me, and what basic things you need to cover to prepare for any tech giants or to basically crack any good product based company. All Yes, right. yes. So first thing, basically, I would like to start. For me, to be very honest, the road was very difficult because there were not one challenge, like n number of challenges in front of me. Uh, like as you all guys know, हमें पता है जब हम 12th वगैरह कर लेते हैं तो एक ही चीज का ड्रीम होता है दैट वेदर यार IITs वगैरह में हो जाए एंड समथिंग लाइक दैट, यही हाँ, हाँ. जो परसेप्शन है चलता आ रहा है, करेक्ट. सो मेरे साथ पहला जो बड़ा चैलेंज था दैट वाज लाइक फाइनेंस, क्योंकि मेरे डैड जैसे नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर ही हैं, ठीक है, वो आज भी अपने Okay. वही प्रोफेशन में लगे हुए, उस टाइम पे भी वही. तो अब उस प्रोफेशन में यू कैन अंडरस्टैंड कि पढ़ाना ही मुश्किल है, घर का खर्च चलाना ही मुश्किल है, Yes, तो yes, yes. कहाँ से Absolutely. मैं आईआईटी के लिए, मैं बस दिमाग में सोच सकता था, बट डेफिनेटली मैं लाइक 1 लाख 2 लाख रुपए कोचिंग में नहीं इन्वेस्ट कर सकता था. एंड बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, मेरे को कुछ लोग बाद में, जैसे मैं कहीं पे पब्लिक स्पीकर था, एक लोगों ने तो मेरे को ऐसे ही पूछ लिया कि आप खुद से ही पढ़ लेते अगर आपको आईटी का सपना था. तो मैंने बोला होते हैं भाई, बहुत लोग होते होंगे एक्सेप्शनल, बट मैं उतना एक्सेप्शनल नहीं था कि मैं खुद से क्रैक कर लूं. तो Hmm. वो चीज भी थी, ठीक है, जो कर पाते हैं दैट्स गुड, बट मुझे जब अपने ऊपर इतना था कि हाँ मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो बस लगा ही रह जाऊंगा, मेरे से नहीं होना क्रैक, वो मेरे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था. तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का ही मैंने सोचा कि
तब उस टाइम पे कुछ भी मैंने ये प्लान कुछ भी नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंप्यूटर्स का कुछ भी नॉलेज नहीं था। मेरे यस को था यस। कि ठीक है पापा, कुछ ग्रेजुएशन ही कंप्लीट कर लेता हूँ सो दैट कि मैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम या इन सब की प्रिपरेशन में कर पाऊंगा। सो हम्म। वो ही उस टाइम पे माइंड ऑफ स्टेट था, तो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ज्वाइन कर लिया बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। एंड उसमें भी मैंने सीएस को एज अ जस्ट वो ले रखा था कि मैंने अपना कॉम्बिनेशन चूज किया था, फिजिक्स मैथ एंड कंप्यूटर साइंस, कि यार फिजिक्स मैथ में स्ट्रांग हूँ, 12th में पढ़ रखा है, और सीएस साथ में ले लेते हैं, कोई डिप्लोमा काइंड ऑफ चीज ऐसी कुछ है, नहीं तो डेटा एंट्री काइंड ऑफ, जैसे बहुत जगह जॉब होती है छोटी मोटी कुछ ऐसी एसएससीज वगैरह में निकलती हैं टेक्निकल साइड की, तो ऐसा कुछ प्लान कर लेंगे, बैंक पीओस वगैरह के, ऐसा कुछ ही था मेरे दिमाग में। ओके बस ओके। आई वाज लाइक कीप ऑन गोइंग, एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी ऑल नो, एटलीस्ट मैंने तो 2011 में स्टार्ट करा था, तो भाई सिचुएशन वाज नॉट दैट गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत यस ही यस। पुअर सिचुएशन था, यूनिवर्सिटीज का कोई प्रोफेसर नहीं आना, कहीं कुछ भी नहीं होना है, तो ये चीजें वहां पे चल रही थी। तो किसी तरीके से मैंने बस रट रट के जो होता है, मतलब यू गाइस वोंट बिलीव कि जो सी में सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट कन्वर्जन, जो बेसिक हम लोग कहते हैं हेलो वर्ल्ड काइंड ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, हम्म। वो भी मेरे को रट रट के लैब्स में करने पड़ते थे, बिकॉज कुछ भी नहीं आता था, वो कंप्लीटली ब्लैंक की ये क्या जार्गन्स मेरे को बता रहे हैं ये लोग, यार ये क्या होता है, ठीक है, यस क्योंकि कभी उतना उस तरीके से पढ़ा नहीं और कुछ उस तरीके से समझ नहीं आ रहा था। तो यस। इसी तरीके से उस टाइम पे लाइफ चल रही थी, बट फिर जब थर्ड ईयर में आई गॉट सम सीरियसनेस अबाउट माय फ्यूचर, तो वहां पे आई गॉट टू नो अबाउट दिस एग्जाम निमसेट। सो निमसेट इज बेसिकली जिसमें कि अभी तक 11 एनआईटीज हैं ऑल ओवर द इंडिया, जो कि एमसीए प्रोग्राम कंडक्ट कराती हैं, ओके एंड उसके ओके। लिए यू नीड टू क्रैक निमसेट। यस। एंड वो भी जो एग्जाम है दैट वाज, उसका जो लेवल है वो जेई, लाइक आईआईटी जेई के प्री के लेवल का आप ट्रीट कर सकते हो ऐसा ही, क्योंकि मैथमेटिक्स का वेटेज ज्यादा होता है उसमें, 60 क्वेश्चंस आते हैं अराउंड, रीजनिंग प्लस थोड़े से इंग्लिश के क्वेश्चन। तो अब उसके लिए एडवांटेज ये था मेरे पास कि कोचिंग मैंने उसके लिए जो ज्वाइन करी, वहां पे फीस कम थी, क्योंकि एमसीए प्रोग्राम था, नोबडी लाइक वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ कैसे इसको प्रिपेयर करना है, क्या करना है। एमसीए को सब, बीसीए एमसीए बीएससी को सब ऐसे ट्रीट करते हैं, जो परसेप्शन सबका बना हुआ है टाइम पास कोर्सेज की, डिग्री बस एक आ गई। और या। जो है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों में से तो मोस्टली बीटेक के ही होगे, बट यस मैं यस। एक रियलिटी ही बता रहा हूँ कि ऐसा ही परसेप्शन बना हुआ है। नहीं, सोसाइटी में तो है तो ऐसा। हाँ, यस। सो वही चीज चल रही थी, तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर करा। मेरे चैलेंजेस में ये था कि यार अब किसी तरीके से फोड़ना है, कुछ करना है। तो अगेन वही फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से, जैसे मेरे घर से यूनिवर्सिटी 13 से 14 किलोमीटर दूर थी, एंड वही कि मॉम डैड के ऊपर उतना बर्डन नहीं देना है, तो कभी मैंने एक्स्ट्रा उसके लिए नहीं बोला कि मेरे को पैसे चाहिए सो दैट मैं पब्लिक कन्वेंस से जा सकूं, ठीक है, कहीं भी। तो मैं बस बाईसाइकिल से ही, अपना डेली का इतना एग्जॉस्टिव शेड्यूल था कि 14-15 किलोमीटर जाना साइकिल से, यूनिवर्सिटी खत्म करना, दिन कोचिंग जाना, वापस आना इतना ही किलोमीटर चल के, फिर कैंपस जो कॉलेज में पढ़ाया गया वो पढ़ना, कोचिंग में जो शीट्स मिली वो लगाना। यस। तो लाइक उस टाइम पे तो बहुत ही बुरा हाल था, बट उसका यही था फ्रूटफुल रिजल्ट कि ऑल इंडिया रैंक 43 आई, एनआईटी इलाहाबाद पहुंचे। क्या नाउ है। आई विल टेल यू वन थिंग कि लोगों का जो परसेप्शन बना हुआ है कि अगर कोई बंदा टीयर 1 टीयर 2 से है तो उसके लिए लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है, उसको जॉब इतनी इजीली मिल जाएगी कि पूछो मत, उसका कम से कम नहीं तो 25 से 30 लाख का पैकेज लगेगा। गाइज ये सब कुछ मिथ है। मैं वहां से पढ़ के आया हूं, तो मुझे पता है कि आप अगर टीयर 3 में हो या कोई बंदा कहीं टीयर 1 में, अगर वो वहां पे रह के अपने एफर्ट्स नहीं कर रहा है किसी भी चीज को मास्टर करने में, देन डेफिनेटली इज नॉट गोइंग टू मेक इनटू एनी गुड कंपनी। कोई भी यस कंपनी यस यस। ऐसे बस नहीं आएगी कि वो आपको, आप आईआईटी दिल्ली से हो, आपको जीरो कुछ भी नहीं आता है, मैं आपको अपनी कंपनी में ले जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बस यही है कि थोड़ा सा एक ही ईज जो मिलता है, जो मैंने ऑब्जर्व करा है कि ठीक है कि कुछ कंपनीज, रेप्यूटेड कंपनीज विजिट करती हैं, बट जैसे जो टीयर 3 या अदर कॉलेज के हैं, उनके बस चैलेंजेस ये होता है कि आपको एफर्ट एक्स्ट्रा मारने पड़ेंगे थोड़ा उन कंपनीज को टारगेट करने के लिए ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज के थ्रू। यस बट यस। आज के टाइम में कंपटीशन और अच्छा भी हो गया है, एंड लाइक एवरीबडी इज गुड, अवेयर है हर हाँ कोई कि कैसे हाँ। करना है।
ठीक हाँ। है, कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आई कैन मेक माय एप्लीकेशन स्टैंड आउट सो दैट अगर मैं ऑफ कैंपस कहीं अप्लाई करता हूं तो मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा एंड आई विल गेट गुड इंटर्नशिप एंड आई विल गेट गुड फुल टाइम ऑफर। सो दैट इज अगेन, कोई टीयर 1 का है, टीयर 3 का है, आपकी जो भी अवेयरनेस है उस पर डिपेंड करता है। सो ये एक ओवरऑल थोड़ी सी जर्नी थी एंड मेरे लिए अमेजोन तक पहुंचने का रास्ता इजी नहीं था, मैं थर्ड अटेम्प्ट में पहुंचा हूँ। सो जो मैं एक चीज बोल ओ। रहा था कि जॉब लगना आसान नहीं होता है, तो मैं भी जब मेरा 3 ईयर कंप्लीट हुए एमसीए में तो आई वॉज लाइक वेल प्रिपेयर्ड, मैंने बहुत अपने बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स पे मैंने मेहनत करी थी बहुत ज्यादा। बट समटाइम्स यही होता है, जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है आपको लगता है यू आर वेल प्रिपेयर्ड, बट बहुत से होते हैं, एक तो प्रेशर, स्ट्रेस, कंपनीज का जॉब लगेगी या नहीं, मिक्स्ड थॉट यस आते यस हैं यस कि यस। लाइक दोस्तों को क्या शक्ल दिखाएंगे, घर वालों को क्या बोलेंगे, घर वाले पड़ोस वालों से क्या बोलेंगे, हर एक हाँ। तरीके का मिक्स्ड प्रेशर इतना ज्यादा था कि आई वॉज नॉट इवन एबल टू क्रैक द रिटर्न राउंड्स। मतलब स्टार्टिंग की 8 कंपनीज, Amazon निकल गई, डायरेक्ट आई निकल गई, सैप लैब्स, ओरेकल, पेटीएम, ये सारी 8 कंपनीज निकल गई और मैं इनका रिटर्न राउंड भी क्लियर नहीं कर पाया एंड मेरे लिए वो डिसअपॉइंटिंग था डेफिनेटली। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था उस टाइम पे, बट एक थॉट वही होता है कि आप थोड़ा इमेच्योर भी होते हो उस टाइम पे कि यार डील कैसे करना है इन दिस डायरेक्शन से, हमारी लाइफ में पहली बार वो हो रहा होता है। यस तो यस। मैंने वही रियलाइज करा कि द बेस्ट वे इज टू लाइक शेयर योर फीलिंग्स विद समवन। लाइक आई यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग विद माय डैड कि पापा जॉब लग नहीं रही है, मतलब आई वाज, रोना भी आता था, मैं कभी भी खाली अगर बैठा होता हूँ तो अपने उन पुराने दिनों को याद करता हूँ तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ ये सोच के कि क्या वो एक दिन थे स्ट्रगल वाले जब ऐसे एक मिक्स इमोशन के साथ निकलना होता था। तभी आई कैन रिलेट विद जो स्टूडेंट्स मुझसे इंटरेक्ट करते हैं एंड मुझसे बोलते हैं सर प्लेसमेंट नहीं लग रही है, या मैं लॉजिक नहीं बना पा रहा हूँ प्रोग्राम के, या मुझसे सर कोड नहीं हो रहा, कंप्यूटेटिव प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, मैं रिलेट कर पाता हूँ उनसे क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दिस। तो ये एक वहां पे मेरे साथ चीज थी, बट फॉर्चुनेटली कंपनी में जॉब लगी, मैंने अपना करियर 5 लाख से, 5 लाख का मेरा पैकेज लगा था, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में स्टार्ट करने के लिए। एक जो चीज मैंने वहां पे सीखी उस टाइम पे, ठीक है, मैं अमेजोन भी थी जिसका रिटर्न राउंड क्लियर नहीं हुआ, तो यस यस। हमेशा ऐसा परसेप्शन भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपने सोच रखा है कि मैं गूगल से नीचे तो कहीं जाऊंगा ही नहीं, मैं अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट से नीचे तो प्लेसमेंट ही नहीं लूंगा, यस। 30 लाख नहीं लग जाता मेरे को कहीं जाना ही नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको इंडस्ट्री में एक स्टार्ट चाहिए होता है एंड यस डिसेंट स्टार्ट कोई भी मिले, ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतने हर साल इतने लैक्स ऑफ इंजीनियर्स निकलते हैं कि कंपटीशन इतना ज्यादा है, अगर आप अपॉर्चुनिटीज मिस करोगे देन थोड़ा बहुत टफ हो जाता है दोबारा से मार्केट में एंटर करने के लिए। सो यस वही मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा गाइज, डोंट मिस दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कोई भी डिसेंट आपको एक चीज मिल रही है, जस्ट ग्रैब इट एंड इस इंडस्ट्री में अपना करियर आप स्टार्ट करो, उसके बाद सब कुछ इजी हो जाएगा आपके। बेसिकली उस पर ही डिपेंड करेगा कि आपका डेव स्किल सेट क्या है, ठीक है, और यस यस। आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे हैं, सो इन चीज पर डिपेंड करेगा। एंड सेकेंड अटेम्प्ट मैंने अमेजोन के लिए दिया था 2019 जनवरी में, जब मैं अपना पहला स्विच कर रहा था, तब मैं थर्ड राउंड से बाहर हो गया था, तभी भी बुरा लग रहा था, बट ठीक है, जो नेवर गिव अप एटीट्यूड मेरा था यस अमेजोन यस। के लिए, क्योंकि एब्सोल्युटली। ड्रीम कंपनी वो हमेशा थी मेरे लिए। यस। तो मैं बस पागलों की तरह बस चेस कर रहा था, फिर इस बार थर्ड अटेम्प्ट मिला एंड मतलब मैंने कर लिया। जर्नी लंबी थी बट उसका जो रिजल्ट आया वो बहुत फ्रूटफुल था। नाउ आई विल टॉक अबाउट गाइस कि क्या एक इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने टर्मिनोलॉजी बना रखी है किसी भी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करने की, PSP, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिस्टम डिजाइनिंग एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एंड आई विल टॉक अबाउट द सम चैलेंजेस एज वेल जो एज अ फ्रेशर हम करते हैं। सो मेरे साथ भी हुआ क्या, मैं देखता हूँ कि जैसे हम कॉलेज में जब एंटर करें तो ये जो कंप्यूटेटिव प्रोग्रामिंग का हाइप ऑब्वियसली इतना बना हुआ है एंड एवरीबॉडी नोज इवन इट्स इम्पोर्टेंस, एंड बट कुछ लोगों ने थोड़ा उस टर्म्स में भी ले लिया, एज अ प्रेशर भी ले रखा है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग को अपने माइंडसेट पे। यस तो यस। होता क्या है कि हम जब कॉलेज में गए तो इतना, मैं भी जब गया था और फ्रेशर्स के साथ होता क्या है कि जब कॉलेज में एंटर करते हो सीनियर्स बोलेंगे और कुछ आपके साथ में बंदे होंगे जो बहुत ही प्रो होंगे कोडिंग में, तो आप उनको देखोगे, अरे भाई इतनी इसकी स्टार रेटिंग है,
एंड समथिंग लाइक दैट, और यू स्टार्ट गेटिंग डीमोटिवेटेड कि भाई मेरे को तो कुछ अभी आता ही नहीं, मैं तो ढंग से भी कोड भी नहीं लिख पाता, एंड ही इज लाइक दिस स्टार ऑन कोडशेफ, दिस स्टार ऑन हैकर रैंक, और ये प्रेशर आने लगता है। और एक दूसरी मिस्टेक क्या होती है कि आज लेट से हमने बुक उठाई एंड मैं जैसे डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, मैंने लिंक लिस्ट बस देखा कि किताब से, ओके लिंक लिस्ट ये होती है, ऐसे ऐसे ये, एंड आई क्विकली विल जंप ऑन टू एनी गुड ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म, कोडशेफ, कोड फोर्सेस, और ये फील लगने लगता है कि आज कम से कम 4 चैलेंज तो निपटा ही देंगे क्योंकि यार लिंक लिस्ट पढ़ ली है ना। Yes, सो yes. ये परसेप्शन बना हुआ है। सो हाउ आई डिड इट, क्योंकि मैंने तीन तीन चीजों में डिवाइड कर रखा है, मैं जो ये प्रोग्रामिंग का जो वर्ड है मैंने इसको 3 चीज में कर रखा है डिवाइड। फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, second is programming part, third is competitive programming part. So Yes. you have to be very very good with problem solving, and problem solving क्या होती है, it's not like to code something, it's like a reasoning concepts. If I am giving you like अगर कोई एक लिस्ट है इसमें इतने नंबर होंगे तो, और ये आपको आउटपुट देना है, देन जो आप सोचते हो दैट इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके लिए यही जरूरी नहीं है कि आप को अगर एरे और स्टैक का पता नहीं है तब तक आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोच नहीं सकते, इट्स नॉट लाइक दैट। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज बेसिकली अ काइंड ऑफ रीजनिंग स्टेटमेंट को एक अप्रोच में लेके आना, एंड उसमें स्ट्रांग होना सबसे पहले बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है उस चीज की। सो जो मैंने स्टार्ट करा था, आई डिडंट लिसन टू एनीवन। पहली मैंने मिस्टेक करी कि थोड़ा बस पढ़ा और मैं कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जंप कर गया। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, ना कोडशेफ पे, ना कोड फोर्सेस पे, ना हैकर रैंक पे, एंड मैं बहुत डिमोरलाइज था। देन व्हाट आई डिड, मैंने अपना एक टारगेट बनाया कि मैं 4 मंथ्स का टाइम लूंगा, एंड मैं जो भी बुक अपनी डेटा स्ट्रक्चर है एल्गोरिदम की पढ़ रहा था, माय टारगेट वाज आई हैव टू नो व्हेन टू यूज, वेयर टू यूज, व्हाई टू यूज। ठीक है। सो मैंने जितने भी एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स थे वो मैंने थॉरली इन डेप्थ पढ़े पहले, कि अगर हीप डेटा स्ट्रक्चर है तो मैं बाकायदा पेन पेपर पे कोड करता था, क्योंकि एवरीबडी नोज हमारे पास ठीक है इनबिल्ट लाइब्रेरीज है, वी कैन कॉल अ फंक्शन टू क्रिएट अ हीप, राइट। Yes. बट इफ समबडी डू नॉट नो द कोर, लाइक अगर मेरे को बोल दे कि हीप बनाने का ही फंक्शन लिखना है, देन मैं कैसे क्रिएट करूंगा? मैंने तो आज तक इनबिल्ट फंक्शन यूज करें, आई डू नॉट नो कि हीप क्रिएट कैसे होती है, बैकएंड इम्प्लीमेंटेशन तो कभी देखे ही नहीं, सीखे ही नहीं। Yes. सो मैं उन पे ही काम कर रहा था। तो मैंने पेन पेपर पे खुद किया, अगर हीप का है तो हीप को क्रिएट कैसे करते हैं, उसका कोड, हर तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज, कौन से यूज केसेस में हीप फिट होता है, वो जब मैंने हर एक टॉपिक वाइज, सिमिलर विद लिंक लिस्ट, सिमिलरली विद ट्रीज, की भाई ट्रीज के कंसेप्ट कहाँ कहाँ पे लगने हैं, अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो किस तरीके के यूज केसेस सॉल्व कर पाएंगे, प्री ऑर्डर से किस तरीके के कॉल कर पाएंगे, सिमिलरली बीएसटी से कौन कौन से यूज केस सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके का उसका कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट होता है, स्पेस में कॉम्प्लेक्सिटी में क्या चीज का डिफरेंसेस होते हैं। सो ये मैंने पूरा 4 महीने, मैंने पूरे 4 मंथ्स डेडिकेट करे इसके लिए, एंड बहुत अच्छे से मैंने उस चीज को पढ़ा, including all the algorithms like binary search, dynamic programming, greedy, some advanced data structures like segment tree, try, right? So ये सारी चीजें मैंने वहां पे बहुत अच्छे से कवर करी। जब मैं कॉन्फिडेंट हो गया, देन आई स्विच ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। एंड नेक्स्ट स्टेप पे भी ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही, मेरे को कहीं पे प्रो रैंक लानी थी या कुछ लाना था। मैंने बनाया कि ठीक है, मैं इतने सेट ऑफ क्वेश्चंस, मैंने 2 प्लेटफॉर्म चूज करे, एक गीक्स फॉर गीक्स, दूसरा हैकर रैंक, कि मैं 5 मेरे को कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे मेरे को नहीं करना है कोडिंग, मेरे को हैकर रैंक का यूआई वाइज और इजी टू एक्सेस लगता था, इसीलिए मेरा टच थोड़ा हैकर रैंक पे ज्यादा अच्छा लगता था करना मेरे को। एंड आप लोगों में से जिसको भी मैं ये सजेस्ट करूँ, जिसको जहां आपको अगर कोडशेफ पसंद है, प्लीज कीप ऑन डूइंग। उस पे ऑब्वियसली प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे चैलेंजेस, लॉन्ग चैलेंजेस वगैरह होते हैं, विच हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, राइट। सो यू कैन डू दैट। मेरे लिए मैंने 2 प्लेटफॉर्म चूज करे। मैं आज के टाइम में भी देखता हूँ कि बंदे 5-5, 6-6 प्लेटफॉर्म्स पे लगे हुए हैं, दे आर लाइक क्रेजी अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। इफ somebody is liking it, somebody is doing it और उससे आराम से हो रहा है, then definitely guys आपको करना चाहिए।
बट अगर आप इस थॉट में हो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज द ओनली थिंग विच कैन हेल्प यू टू लैंड इन अ गुड जॉब, और इट विल ओनली द थिंग which will help you to crack product base or tech giants, then this is not the reality. CP only helps you to improve your problem solving skill, plus whatever achievements you gain by doing competitive programming and whatever you mention in your job application and resume, it makes your application stand out from the crowd. So that Okay. the kind of advantage you can get from the competitive programming. That means you will get noticed by the companies, you will get noticed by the recruiters. But if you are thinking that and like number, like ratio of these kind of companies obviously is less, which only thinks that somebody is doing CP or he has like this kind of stars on these kind of platform, then he will be like good choice for the company, good choice for the interviews. So उसका रेशियो भी कम है आज के टाइम में. देर आर लॉट ऑफ मोर थिंग्स विच every company wants from a candidate, because they are not looking for pro coders, they are looking for good engineers, right? Yeah. And how do you become a good engineer? When you are good at problem solving, you have good development skills, you have good designing skills. If you are combination of these things, that means you are a good engineer. So वो चीज एक बहुत बड़ा फैक्टर है. सो दैट्स व्हाट आई सेड. फर्स्ट, डेडिकेट गुड अमाउंट ऑफ टाइम अपने जो डीएसए के बेसिक्स हैं उसको सॉलिड करने में. देन चूज स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, बिकॉज जब एक बार हमने बेसिक्स कवर कर लिए, देन इट्स द टाइम जहां पे हम हर एक टॉपिक के एटलीस्ट मोर देन 200-300 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए, राइट? सो दैट्स व्हाई लाइक Geeks for Geeks हेल्प मी अलॉट देयर. मैं वहां पे हमेशा ऐसे प्रैक्टिस करता था कि जैसे कोई टॉपिक मैंने टारगेट करा तो वो टॉपिक मेरे को निपटाना है पहले. मैं ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में मेरे को हर टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन लगाने हैं. मैं एक टॉपिक पकड़ता था, उसको पूरा फिनिश करता था, उसके जितने भी क्वेश्चन 200-300 मेरे को लगाने हैं, मैं वो ही पूरा फॉलो करता था वहां पे. इसी तरीके का मेरा सीक्वेंस था गीक्स फॉर गीक्स पे. एंड उसमें भी लाइक इजी, मीडियम एंड हार्ड, क्योंकि अगर आप रैंडम सीक्वेंस जब भी फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली एक फ्लो नहीं बनता है, प्लस डिमोटिवेशन ही आती है. एंड उस चक्कर में जो एटलीस्ट मीडियम लेवल के क्वेश्चन कंपनीज पूछती हैं या समटाइम्स इजी लेवल की, आप वो भी मिस कर देते हो. जैसे अगर मैं लेट्स से ग्राफ में कुछ एडवांस लेवल का पढ़ने गया एंड इट लुक्स इरिटेटिंग टू मी बिकॉज मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, डिमोटिवेट हो रहा हूँ. सो मेरे को लगता है बकवास है ग्राफ यार, मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा. एंड हम उस चक्कर में जो हम पढ़ सकते हैं उस टॉपिक में वो भी हम स्किप कर देते हैं. सो ऑलवेज स्टार्ट विद द लेवल्स लाइक इजी, देन मीडियम, देन हार्ड. सो दिस लाइक इस तरीके का रोड मैप जब होगा, देन डेफिनेटली यू कैन कैपिटलाइज इट इन अ बेटर वे, right? Yeah. So that was like my overall opinion about the competitive programming and like इस तरीके का जो भी पार्ट है वो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है एंड वो ही मैंने शेयर करा है. एंड वन एंड टू मोर थिंग्स विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट. फर्स्ट थिंग इज कि लैंग्वेज के लिए आपको परेशान नहीं होना कि कौन सी लैंग्वेज में करना है, एंड इंटरव्यूज में या रिटर्न राउंड्स में कौन सी लैंग्वेज अलाउ होगी. सो like in the interviews or even in the coding challenges or the online tests, that you are free to use any language of your choice. अगर आप जावा में एक्सपर्ट हो, you can choose java to code. आपको C++ अच्छे से आती है, you can choose that. So language is not a barrier in the interview rounds and even in your like online tests etc, correct? Yes. So that's the thing. Next one, I was talking about the system designing part. and सो सिस्टम डिजाइनिंग लाइक जब मैं अपने टाइम पे इंटरव्यूज वगैरह दे रहा था, सो इट वाज नॉट दैट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द इंटरव्यूज. बट nowadays what happened again, companies are focusing much more on the engineering side, right? So as a fresher, to be very honest, companies आपसे बहुत अच्छे लेवल का डिजाइन स्किल नहीं एक्सपेक्ट करेंगी, but they definitely want you to have a good understanding like how different things works together, right? If somebody asks me to design this web platform, then what all things like for the backend, for the front end, what I'll be using, how like what kind of protocol I will be using to communicate, WebSocket, web servers,
right? Caching Yes. layer and backend databases. So that like ये चीजें प्रैक्टिस करना, ये चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये चीजें आप सॉलिड कैसे कर पाओगे, इनकी डिपेंडेंसी दो चीजों पे है. First dependency is on your core CS subjects. What people used to do, हम प्रोग्रामिंग में इतना ज्यादा डीप डाइव कर जाते हैं कि वी यूज टू स्किप आवर कोर सीएस सब्जेक्ट्स. एंड यही एक पार्ट होता है जहां पे कि बहुत लोग इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो जाते हैं एंड दे डू नॉट गेट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज because these subjects plays a very important role in your placements, in your interviews. Because first, even in the online test, like there will be coding questions, along with that there will be 25-30 MCQ questions, which will be combination of your core subjects like oops, right? Oops Yes. concepts, operating system, networking, databases, right? And these are really important. Even in the face to face interviews, let's say somebody is asking you to solve any algorithmic question, definitely after 1-2 rounds there will be questions around your core subjects. Okay, like what is process, what is thread, what is the difference between two, what is TCP, what is UDP, right? So these are your core fundamental subjects. Please do not ignore it at all, right? Yes. Otherwise Absolutely. interviews are going to be really tough for you. So for system designing part, this was the first dependency. Second dependency is like good project ideas. The more you work on the projects, the more you learn about the development skills, right? Yes. So and now I would like to highlight few things. Like कि प्रोजेक्ट में लोगों के साथ क्या चीज हो रही है. एंड ट्रस्ट मी, मेरे को लाइक जितने लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, आई नो तुम लोगों में से बहुत लोगों का परसेप्शन ये होगा. What people are thinking, like data science, AI, ML, deep learning, image processing are the only things जो कि जिन पे प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं. इसके अलावा कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जिस पे प्रोजेक्ट नहीं बनाए जा सकते. सो ये एक जो अभी थोड़ा सा मेंटालिटी चल रही है, दैट इज वेरी बैड. आई यूज टू से ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड जो प्रोजेक्ट का जो टाइम है, प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड स्पेशली तब इफ समबडी इज टारगेटिंग ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज. एंड True. अगर आप ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज टारगेट कर रहे हो एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड इंटर्नशिप्स and you do not have good projects on your plate, then it is going to be difficult for you to like crack these companies or internships. So always for the project starting from your first year, even like if somebody dedicated its first year on programming on the DSA and these things, then at least starting from your second year, spend good amount of time, at least 1 month 2 month, to like explore different domains. Android development, new tech stack in it, similarly iOS, web development, back end, front end की क्या है इसमें, cyber security, DevOps, data engineering, data science, AI, ML. Just dedicate at least 1 or 2 months to explore it. Try to do some benchmarking. Okay, if I'm going with data science, what are the future opportunities in the market, what kind of tech stack do I need to cover? Because sometimes what happens, like tech stack is not of our interest. Let's say I'm someone who is from the core, I love doing coding, I love playing with good and scalable systems. And if I'm looking forward for data science domain, that means there I have to spend time for the mathematics part, modeling, etc, data mining, something like that, which sometimes people hate doing, right? As a fresher, because they are very much closer to the programming side, coding side and all. So that's why means ऐसा करियर ऑप्शन नहीं चूज करना है जिसमें जाने के 10 महीने बाद आपको रिग्रेट फील हो कि ये लाइन मैंने क्यों चूज कर ली. सो एंड इसके लिए भी आपको जैसे सोसाइटी से कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होना कि यार मैं डेटा साइंस इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि सामने वाले बंदे ने बोला है कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है. नहीं, मेरे को खुद से एक्सप्लोर करना है कि मेरा इंटरेस्ट किस में. अगर मैं वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हूं तो मैं उस पर ही प्रोजेक्ट बनाऊंगा. क्योंकि every single technology, every single domain has its own relevance in the IT industry. And in terms of the pay scale, definitely कोई भी जॉब प्रोफाइल पे आप जाओगे, if you are targeting good companies, they are maintaining a good salary bracket for everyone.
Yes. वो ऐसा भी डिस्प्यूट नहीं है सैलरी के बीच में कि अगर ये बंदे को एंड्रॉइड के लिए हायर करा है तो इसको हम इतना ही देंगे, इस बंदे को हमने बैकएंड के लिए करा है इसको हम ज्यादा देंगे। नो, जो गुड कंपनीज हैं, जो अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, सर्विसेज भी हैं, दे आर मेंटेनिंग अ गुड ब्रैकेट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस यू हैव, राइट? कि अगर 3 साल का बंदा है, अगर वो साइबर सिक्योरिटी में भी आ रहा है, वो एसडी प्रोफाइल पे भी आ रहा है, देन आई हैव टू पे दिस मच अमाउंट, क्योंकि मार्केट स्टैंडर्ड ये है। Hmm. बट समटाइम्स हाँ, स्टार्टअप्स वगैरह या कुछ ऐसी कंपनीज हैं, वहां पे पे स्केल का ऊपर नीचे होता है, क्योंकि वहां का वर्क कल्चर डिफरेंट है, बहुत रैपिड डेवलपमेंट है, स्ट्रेस भी ज्यादा है, वर्कलोड भी हर एक तरीके से बहुत ज्यादा है, एंड वो दे डू नॉट इवन केयर अबाउट द डिस्प्यूट एंड ऑल। उनको अच्छा कैंडिडेट मिल रहा है, अगर उस कैंडिडेट ने बोला है कि मेरे स्किल सेट के अकॉर्डिंग मैं इतना पैसा लूंगा, एंड लाइक कंपनीज आर, उनको चाहिए कि हाँ वो बंदा चाहिए, बंदे का स्किल सेट है, तो लाइक दे कैन पे यू एज मच एज दे कैन। सो वहां पे एक थोड़ा सा सैलरी में अप एंड डाउन का रहता है, बट कोई भी बड़ी एंड अच्छी कंपनीज आप टारगेट करोगे, वहां पे कभी भी इस तरीके का डिफरेंसेस किसी भी जॉब प्रोफाइल पे देखने को नहीं मिलता है कि कितना पे स्केल का है। सो दैट इज द थिंग। प्रोजेक्ट्स के लिए अगेन आई फोकस ऑन दिस थिंग कि प्लीज मेक अ इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बनना है ना, आप कोई प्रोजेक्ट ऐसे जबरदस्ती कर रहे हो, देन इट्स बैड। सेकेंड थिंग, कभी भी लाइक आपको वो नहीं करना है कॉपी पेस्टिंग, या कहीं से प्रोजेक्ट उठा लिया, सीनियर से ले लिया, जस्ट की फैकल्टीज को दिखाना है, ग्रेड्स पा लेने हैं। नहीं, आप प्रोजेक्ट बनाते हो टू लर्न द डेवलपमेंट स्किल्स। डेवलपमेंट स्किल्स को गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो आपके अंदर तभी आएगा जब यू आर वर्किंग ऑन सम रियली गुड प्रोजेक्ट्स। एंड वो प्रोजेक्ट्स भी बहुत ओल्ड स्कूल नहीं होने चाहिए कि ठीक है लाइब्रेरी मैनेजमेंट बना दिया, डेटाबेस हैंडलर कुछ बना दिया, और कंपनी की जो प्लेसमेंट्स की साइट है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया। नहीं, ये नहीं है। आपको प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे बनाने विच आर कंट्रीब्यूटिंग, और जो कि थोड़ा सोशल कॉजेस से रिलेटेड हो। लेट्स से कोई फूड ऐप अच्छी सी बनाई, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस से रिलेटेड कोई ऐप बनाई बहुत अच्छी सी, या कोई एक आपने एक कोई बहुत ही अच्छा मॉडल बनाया, लाइक यू वर एनालाइजिंग कोविड डेटा एंड यू क्रिएटेड सम गुड प्रेडिक्टिव मॉडल फ्रॉम इट। आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटा साइंस डोमेन। लेट्स से कोई डेटा पे वर्क कर रहा है, and Yes. let's say somebody is doing image processing, right? Sudoku solver, doing OpenCV and all, and such kind of that, like such some impressive projects jahan pe you can learn like random and good things, and you can showcase your skill sets. Okay, yeah, this kind of stuff I have done. Right, so please focus on that. But first, again, priority would be your interest, what you like doing. Then choose it and start creating good projects based on some real time scenarios, real world problems, Yeah. and improve your development skills. And the major thing, guys, please keep on participating in hackathons and open source contribution, because nowadays this is the very very important thing to get shortlisted for the interviews, especially for the off campus opportunities. Because what happens in the hackathon, you get a like a problem statement which is basically from the some real world scenario, and you start building some product on top of it, right? And the best part is like आपको वहां सिर्फ 2-3 दिन का टाइम ही मिलता है, एंड जहां पे कि यू हैव टू कम अप विद अ गुड सॉल्यूशन। सो आपके डेवलपमेंट स्किल्स और अच्छे से निकल के वहां पे आते हैं कि यार इतने कम टाइम में एक इतना अच्छा प्रोडक्ट मैंने बना के दिया, ये कंपोनेंट मैंने यूज करे एंड टीम के साथ में काम करा, आई गॉट टू लर्न अबाउट दीज many things, these frameworks, these tech stack. So hackathons are the best way to learn good development skills, and again to add good achievements in your resume. Similarly, open source stuff like GSOC and MLH fellowship, like Free Code Camp, Linux Foundation. So these are the communities where you can definitely work on open source projects, and like working on open source projects, I mean a very very awesome experience. You will get a good mentorship from elite engineers across the globe. They will guide you about the different technologies, and like I would definitely say it's a great piece to work on. And again, even in your resume somebody will read, okay, this guy has contributed on, let's say, Apache Spark framework, which is open source, because across the globe it is being used, and I'm contributing in it on its development side.
that would be a like sexiest opportunity, or sexiest, you can say, achievement on your resume. So that kind of impact these things have: hackathons, competitive programming challenges, and open source contribution. So please keep on doing that. Awareness is very important. Join good communities, become part of it, be active on LinkedIn. You'll keep getting information about different things going on around the IT industry, around different communities, and please take participation. That is very, very important, guys. Yeah. So that was really very inspiring to me, especially, and I hope that the same happened to all my friends also. And now, since we know about our speaker, let's dive into the main Q&A session. But before I tell you that, actually हमारे पास सवाल बहुत ढेर सारे आए थे. तो हमारे पास टाइम बाउंडेशन होने की वजह से हमने उसमें से मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो थे उसे हमने सेलेक्ट किए हैं. तो बिगिनिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, we have that how should a beginner start from zero and grab jobs at big MNCs? भैया, if you have already answered this question, you can मतलब आप छोटे में भी इसको short and simple crisp How बता should a सकते हो. beginner start from zero and grab? Yeah, so the PSP, the terminology I told you. So for a beginner, that is again very, very important. If somebody from the day zero is starting, I mean, problem solving part, system designing part, good development skills, and along with that, like starting from your second year, if you have started taking participation in hackathons, open source contribution, something like that, I can definitely guarantee you, I mean, in your third years, you like will get a good internship, and after your fourth year in your placements, even off campus opportunities, you will grab a good offer from any good tech giants. So that kind of like candidates those companies are looking actually. So if somebody is following that terminology PSP from day zero, he and she can do wonders. Okay, okay. Moving on to the next question, we have that how to study in second, third, and fourth year to get your goal company with high packages. Okay, how to study in second, third, and fourth year to get your goal company with high package. All right. So yeah, that's the question. As I said, second year, third year, fourth year. So first year, definitely you explored. I'm assuming, let's say you have a good understanding of at least one programming language, Yes. and you have a good overview of DSA, and you have already started exploring different domains of projects. Then in second year, what you should do, definitely start doing the competitive programming part as well to enhance your problem solving skills. And again, before that, have a very, very good grip on all the basics and fundamentals of DSA. Second thing, in your second year, start like take participation in the hackathons, and at least आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है सेकेंड ईयर से. आपको थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का वेट नहीं करना है. आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट करना है सेकेंड ईयर से, डेफिनेटली किसी भी तरीके से, राइट. Okay, okay. एंड देन इन द थर्ड ईयर योर टारगेट शुड बी टू गेट अ गुड इंटर्नशिप्स, क्योंकि सेल्फ मेड प्रोजेक्ट्स इज अ डिफरेंट थिंग. बट जब फोर्थ ईयर में कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आएंगी एंड उससे पहले आपने अच्छी इंटर्नशिप कर रखी है जिसमें आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, that will give a good impact on your placement interviews, right? So in Okay. the third year, your target should be like overall preparation, including your brushing up your DSA skills and whatever projects you made in your second year, so that in the internship interviews you can showcase those projects. And whatever hackathons you want, and whatever let's say open source contribution you have done. So like that would be your target for the third year, including your core CS subjects as well. Okay. In the fourth year, I mean, just revision. I won't say like keep on doing some other extra and irrelevant stuff which is not related to your placements and all, because fourth year will be it will be full with pressure and stress and all. So you have to be positive, you have to be calm, composed, and just revise the things what you have learned, what you have covered, to target good placements. So that's the how you can plan. Okay, 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 sure. Uh,
The next question is that what is the difference between a data engineer and a software engineer? All right. Yeah. So that was like most often asked question to me, I think to they be must have very read honest. that you're a data engineer and that's why they asked it. Yeah. So both, I would say there is a some overlap. Overlap. I mean, again, a data engineer should have a good understanding of DSAs, backend systems, right, and all. But as a software engineer, you can basically say a guy who is working on some like software products, let's say any web app or any backend part, front end part, any Android application, let's say iOS application. So these are like related to some software application development, correct? Okay. As a data engineer, we used to work on the data pipelines. Our task is to play with data, right? High scale of data, not even in GBs, it like petabytes and hexabyte of data, Yeah, correct? yeah, So we used to deal with such amount of data, writing scalable, optimized data pipelines. And what is pipeline? Basically, picking data from some sources, apply some on the fly transformation on top of it, and then make it consumable for the end users, right? yeah. So that's the like very, very high level picture of roles and responsibility of a data engineer. But if you will deep dive into this profile, there are n number of things and number of challenges we used to face as a data engineer. But this is the major segregation. Like software engineer mostly will be working on the application development side, making things on the web world. But as a data engineer, we will be working mostly for this, mostly, or you can say exactly for the data part. So that's a very, very high level difference you can treat. Okay, okay, sure. The next question is that how to manage competitive programming with difficult subjects of electronics. Actually, this question was for electronics, but I added any other branch also. I'm also Yeah, from electronics. I can definitely understand like how difficult it is for you guys to manage. But trust me, if you are starting these things late, then it is going to be difficult for you. But if you are like making or keeping the momentum from beginning, then I don't think so. It is like going to make any worse impact on your CGPA or any your time management, time schedule. So break down the things. Do not just mix up your current curriculum you are reading and the programming subjects, these type. You should have a good time management. Okay, in a day I have to spend 3 hours. That's it. That should be your time. And how you are doing it, that's up to you. But if you are like having a good time management, then I don't think so you will face any problem with your like current branch subject and doing competitive programming and other things. But yeah, if you are on daily basis you are getting addicted for competitive programming only, because I definitely know sometimes you will not able to solve a question and आप पूरा पूरा दिन बैठे रहोगे एक ही क्वेश्चन को लेके कि नहीं यार मेरे को सॉल्व तो करना है, ठीक है, Uh-huh. वहां सॉल्व नहीं हुआ बट मैं इसको सॉल्व करके देखना है. सो वही होता है कि हम एडिक्ट जब होने लगते हैं देन वहां पे टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है. वो नहीं करना है. जो ठीक है डेडिकेटेड टाइम दिया उसमें जो चीज सॉल्व हो पा रहा था दैट्स फाइन. ठीक है, जस्ट गो विद द एडिटोरियल एंड सी व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक यू डिड एंड अगेन फ्रॉम द नेक्स्ट onwards like just improve on it. So that's how you should plan, like better time management, no confusion. Okay, I have a question that by late, what do you mean? First year, second year, third year, fourth year? Yeah, लेट आई डेफिनेटली मेंट टू लाइक कि लोगों का ये रहता है कि सीपी, बहुत से लोग आपकी बैच में डेफिनेटली होगा कि 20% ही होंगे जो सीपीपी करते होंगे, मे बी बाकी के नहीं करते होंगे, उनको कि ठीक है डीएसए से पढ़ रखी कुछ, ठीक है प्लेसमेंट देख लेंगे. Yes. लेट करने का स्टार्ट मतलब ये कि अगर थर्ड ईयर में जाके आंखें खुल रही हैं मेरी कि सीपी भी करनी थी, देन इट्स लेट. तब वहां पे अच्छा. प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि आप और कुछ पढ़ नहीं पाओगे, आपके दिमाग में वही चलेगा, आप ना प्रोजेक्ट पे ध्यान दे पाओगे, ना कोर सब्जेक्ट्स पे, ना रिवीजन पे, ना आपकी इंटर्नशिप में हेल्प नहीं होगा आपको क्योंकि सीपी वगैरह उतना स्ट्रांगली नहीं कर पाए. सो लेट से मेरा मतलब वही था कि इतना Okay. लेट नहीं होना है कि मैनेज करना मुश्किल हो जाए. Okay. 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 How did you get guidance during your days of preparation? A very interesting I question. I didn't get any guidance to be very honest. So it So was hit and मैं trial.
या मैं जितना भी आज अभी कम्युनिटी के लिए कोशिश करने की ट्राई कर रहा हूँ, उसका एक ही रीजन यही है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंस जानता हूँ गाइडेंस की, क्योंकि मुझे मिली नहीं। एंड मैं खुद Yes. मेरे जैसे लाखों होंगे जिनको नहीं मिल रही होगी, तो इसी वजह से ही मैंने स्टार्ट करा था। मेरे को कोई गाइडेंस नहीं मिली, क्योंकि कॉलेज में लाइक ऑब्वियसली अपनी 12th एंड ग्रेजुएशन की जर्नी बताई, यू कैन डेफिनेटली फील कि भाई मेरे को क्या ही गाइडेंस मिली हाँ. होगी। Yes, yes, नेक्स्ट yes. जब मैं एनआईटी में भी पहुंचा, तो ठीक है, जैसे हम मास्टर्स में थे एमसीए, तो कोई इतना ऑब्वियसली कॉलेज में भाव नहीं देता था, ना तो बीटेक के स्टूडेंट्स देते थे, ना भाई प्रोफेसर्स भी देते थे। उन्हें उम्मीद ही कम रहती थी कि ये क्या ही कर पाएंगे, मतलब एक तो हम Yeah. 80-90 का बैच होता था, तो Yes. वो भी हमारे ऊपर रहता था प्रेशर कि यार हमें तो कहीं रिकॉग्निशन ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो कौन ही हमें गाइड करेगा। और मैं जैसे हाँ. वो कूड़ा करकट नहीं होते हैं, कूड़ा समझ के कि ठीक है, एक टाइम पास के लिए एक ब्रांच बनी हुई है कॉलेज में एमसीए, ठीक है, तो वो बस आप समझ सकते हो कि ऐसा सीन था। तो मेरे लिए डिफिकल्ट था। अगर अच्छी गाइडेंस, अब सिमिलरली हमारे सीनियर्स के साथ भी हो रखा है, तो वो हमें क्या गाइड करेंगे, तो उनसे भी कोई गाइडेंस नहीं मिली। अब वही मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको चीजें बताई, बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, बी एक्टिव ऑन गुड कम्युनिटीज। हमें उस टाइम पे कम्युनिटीज का मालूम ही नहीं था कि भाई ये जी सॉक जैसा क्या होता है, क्या एमएलएच वगैरह है, या क्या ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है। मैंने तो अपना सिंपल सा, मैं तुम लोगों को मना कर रहा हूँ कॉपी करने के लिए, मैंने तो नॉर्मल भाई कॉपी करा था प्रोजेक्ट, और फैकल्टीज को दिखा दिया था, क्योंकि मुझे ग्रेड चाहिए थे। मुझे ये सारी इंपॉर्टेंस जब इंडस्ट्री में मैं आया हूँ, जब मैंने वहां सीखा है, तब मुझे इन सब की इंपॉर्टेंस पता लगी कि यार मैं तो बहुत ज्यादा लेट हूँ। Hmm. क्योंकि मुझे कहीं पे कुछ स्टार्ट करना था प्रोजेक्ट या कुछ काम, तो मेरे को पढ़ना ही पड़ रहा था कि भाई लोड बैलेंसर्स कैसे काम करते हैं, कैसे कैशिंग करनी है। Yes. तो ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी रही है मेरे लिए। दैट्स व्हाई कीप ऑन फोर्सिंग गाइस कि इंडस्ट्री की रियलिटी इज वे अहेड एंड बहुत डिफरेंट है केवल कोडिंग करने से। इट्स बीन लाइक 3.5 years फॉर मी, एंड आई हैवंट यूज लिंक लिस्ट, आई हैवंट यूज ट्रीज, आई हैवंट यूज ग्राफ। सो Yes. उसी में आपको नहीं उलझना है, प्लीज माइंड माय वर्ड्स, कि नहीं, उसमें आपको फंसे नहीं रहना है, आपको अपने डेव स्किल्स पे बहुत फोकस करना है। और वो गाइडेंस आपको तभी मिलेगी इफ यू आर कनेक्टेड विद गुड पीपल ऑन गुड प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, or you are like involved with good communities, you are having interaction with people who are smarter than you. Doesn't matter who's your junior or who's your senior, but he is smarter than you, and if he and she can teach you something, definitely you should go for it. Yes, 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 absolutely. Actually, this is a dogma of the society that we don't need to tell to. मतलब you said ना कि MCA से किया तो professors भाव नहीं देते थे. It will take time to change. Moving on Yeah, to the next definitely. question, we have as an interviewer, what you expect from a candidate and what are the things that you look up to first? फर्स्ट थिंग डेफिनेटली, जो मैं देखता हूँ, मैंने भी इंटरव्यूज काफी लिए, कि कॉन्फिडेंस, मैं एक ऐसी चीज, एक ऐसा फैक्टर है कॉन्फिडेंस, विच कैन लाइक 30% एडवांटेज में हमेशा देता हूँ कि बंदा कॉन्फिडेंट है। सेकंड, मैं देखता हूँ कि लर्निंग इंथुजियाज्म है उसके अंदर या नहीं। ऐसा Yes. नहीं है कि मैं कभी डीएसए ये कि नहीं, अगर उसने मेरे ये 3 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मैं मेरे लिए वो बंदा बहुत फाड़ू है, नहीं। मैं कभी इस बेसिस पे जज ही नहीं कर सकता। मेरा फर्स्ट कॉन्फिडेंस, सेकंड की थॉट प्रोसेस कैसा है उसका। इट शुडंट बी लाइक दैट मैंने कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, ही इज ब्लैंक, एंड मतलब कुछ बोल रही नहीं रहा है, दिमाग में कुछ जोर ही नहीं दे रहा है कि यार ये कैसे होना चाहिए, या क्या क्या मतलब कैसे करना चाहिए था। अगर वो नहीं कर रहा है, देन इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। थर्ड थिंग, लाइक इंटरेक्शन, इट शुडंट बी लाइक दैट मैंने आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोला, आपने 15 मिनट लिए बैठ के पेन पेपर पे सॉल्व करा, मेरे को पेपर दे दिया, सर ये मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, एंड प्लीज ये सही है या नहीं। सो वो, भाई मैं क्यों पढ़ूंगा तुम्हारा एक पेज का सोल्यूशन पढ़ने का, मेरे पास टाइम नहीं है। तो Yes. इंटरव्यूअर्स में हमेशा हम यही बोलते हैं इंटरव्यू में कि थिंक आउट लाउड। आप इवन एक सिंपल सी लाइन लिख रहे हो फॉर लूप की, यू शुड नरेट इट, ओके दिस फॉर लूप आई विल बी यूजिंग, एंड ये कंडीशंस होंगी, सो दैट मेरे को पता लगता रहे कि भाई तुम कौन सी अप्रोच लगा रहे हो। एंड इंटरव्यूअर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, अगर वो देखेंगे कि तुम किसी गलत ट्रैक पे जा रहे हो, कोई गलत अप्रोच ले रहे हो, देन डेफिनेटली दे विल गिव यू सम इनडायरेक्ट हिंट्स, राइट। Yeah, yeah, ऑब्वियसली डायरेक्ट हिंट्स नहीं आएंगी, दे विल गिव यू इनडायरेक्ट हिंट्स।
So that's how, like, confidence, learning, enthusiasm, and again, good problem solving in the sense thought process. And वही कि जो लास्ट में था कि जो चीजें पढ़ रखी हैं वो उसको उसका इन एंड आउट पता होना चाहिए, चाहे वो उसने तीन ही स्किल सेट मेंशन कर रखे हैं अपने रिज्यूमे में, बट उसको उसके इन एंड आउट पता होने चाहिए। कुछ Yes. भी फेक नहीं लिखना चाहिए कभी भी हमें अपने रिज्यूमे में, जस्ट टू गेट शॉर्ट लिस्टेड। अगर इंटरव्यूअर ने फिर पूछना स्टार्ट करा एंड आप नहीं बता पाए, तो आप मान के बैठ जाना कि इंटरव्यू क्रैक नहीं होना, क्योंकि आपने फेक लिखा था और आपने स्किल सेट में लिखा है। तो स्किल सेट का मतलब होता है कि मुझे ये आता है। अगर मैं लिख रहा हूँ एंड मैं उसके आंसर करने में ही लाइक कैपेबल नहीं हूँ इवन बेसिक क्वेश्चन, देन इट्स अ नेगेटिव साइन कि भाई केवल हमने रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट के लिए लिख दिया। सो ये चीजें मेरी एक्सपेक्टेशन होती हैं एज अ इंटरव्यूअर फ्रॉम अ कैंडिडेट। मतलब गलत मत लिखो. नथिंग नथिंग, कभी भी नहीं। Yes. Next question is that what to do to be different from others in the interview room. या जो ये मैंने चीजें बताई यही आपको बस करनी है। एंड क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है जिसमें कि लोग लैक कर जाते हैं, जो कॉन्फिडेंस होता है, मोराल मोराल इतना डाउन हो जाता है ना। सो Yes. क्योंकि प्रेशर एक ऐसी चीज है विच रिड्यूसेस योर थिंकिंग एंड लिसनिंग कैपेबिलिटी, राइट। अगर Yep. आप Yeah. Yeah. पॉजिटिव हो एंड यू आर अटेंटिव, सो इंटरव्यूअर के सामने जब आप बैठोगे वहां पे आपकी ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लिसनिंग एंड थिंकिंग कैपेबिलिटी। Yes. जितना अटेंटिवली आप सुन पा रहे हो उतना अटेंटिवली आप सोच पाओगे। अगर आप स्ट्रेस में हो, आपके दिमाग में केवल वो चल रहा है कि मम्मी डैडी को क्या बोलूंगा आज नौकरी नहीं लगी, तो आप उनको नहीं सुन पाओगे क्या पूछ रहे हैं वो। आपका दिमाग इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा कि आप आंसर ही नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज द बिग डिफरेंस इन द इंटरव्यू रूम। दिस इज व्हाट विच मेक्स अ बिगर बिगर डिफरेंस। आप वहां पे अगर जीत गए तो फिर आप इंटरव्यू को अपने अपने आप डोमिनेट कर सकते हो इंटरव्यू में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। I mean, long answer short, be confident. करेक्ट। Yeah. आपको क्योंकि आता है, आपने इन्वेस्ट करा है टाइम, Yes. आपको चीजें पता है, आपको बस एग्जीक्यूट करनी है, वहां पे आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, बताना है, दैट्स इट। जस्ट ट्रीट इट लाइक अ हेल्दी टेक्निकल डिस्कशन विद समवन एल्स। क्योंकि इंटरव्यूअर भी जो वहां पे आ रहा है वो एक्सपीरियंस बंदा आ रहा है बहुत, हाँ. उसको आपके लेवल की चीजें नहीं आती होंगी जो आपने अभी कॉलेज में प्रोसेस एंड थ्रेड का आपने पढ़ रखा है, उसको इतने डिफरेंसेस नहीं पता होंगे जितने आपको पता है, Yes. राइट। सो Yeah. Yeah. बस वो कॉन्फिडेंस में हर चीज का आंसर करना है आपको। Okay. Okay. The next question is, what are the various rounds that we have to face in सो in MNC companies? ओके, सो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस ही होता है। फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड जिसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, कोडिंग क्वेश्चंस एंड वही एमसीक्यूज वाला। Okay. स्टार्टिंग टू राउंड्स विल बी योर टेक्निकल, जहां पे मेजर फोकस वुड बी डीएसए एंड कोर सब्जेक्ट्स लाइक ओएसडी बीएमएस, इनके मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे। थर्ड राउंड प्रोबेबली व्हेन मोस्टली लाइक प्रोजेक्ट डिस्कशन, जहां पे कि जो प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर रखा है, पास्ट कोई अचीवमेंट्स थी, कोई हैकाथॉन पे प्रोजेक्ट बनाया था, सो उन पे डिस्कशन होता है। एंड फोर्थ मींस, और यू कैन सी इन टोटल द फिफ्थ राउंड लाइक मैनेजर प्लस एचआर, जहां पे दे यूज टू टेस्ट योर बिहेवियरल पार्ट, लाइक कि आप टीम के लिए गुड फिट हो या नहीं हो, आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है या नहीं है, राइट। सो किस तरीके का बिहेवियर दे यूज टू टेस्ट, क्योंकि अपनी टीम में उनको कभी निगेटिविटी नहीं चाहिए। एंड दे वांट सम पीपल हु आर कोलैबोरेटिव, हु नो बेसिकली कि टीम में कैसे काम करना है एंड कैसे अच्छा टीम प्लेयर बनना है। एंड ये सब एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटालिटी एंड पॉजिटिव बिहेवियर से आता है। सो वो जज करते हैं एचआर एंड मैनेजर राउंड में। Okay. Okay. So the next question we have is that how was working environment of Amazon and how is it different from your last two experiences? So, yep, working experience in Amazon, it's good. It's really good. I'm enjoying. Why? Because again, Amazon has a like good set of leadership principles, 14 leadership principles, on which they like focus a lot. These are the parameters, I mean, which they look forward from a candidate. So I enjoy working here. I love it because on daily basis I used to get new challenges, new kind of stuff to work upon.
and great leadership, great mentors, great managers who keep on guiding, who keep on pushing me for new challenges, be initiator. So they keep on motivating me, which is a good part to grow in the IT industry, because you have to learn your technical skills and you have to be good with your soft skills. So that kind of environment I'm getting here, and so far so good. Oh. Next question is that can a non CSIT candidate be placed into Amazon? या डेफिनेटली डेफिनेटली लाइक बहुत बंदे हैं गाइस, इवन मैंने अपने चैनल पे कितने बंदों को फीचर कर रखा है जो कि मैंने नॉन देखा। सीएस बैकग्राउंड से था, एंड दे मेड इनटू गुड टेक जायंट्स, गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. सो इफ दे कैन मेक इट देन डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दोज डिफरेंट थिंग्स जो कि आपको करनी है आपको उस जगह पे पहुंचने के लिए. इट्स नॉट लाइक दैट बस की कंपनी में अगर अमेजोन आ रही और उन्होंने ईसी वाले को अलाउ कर दिया तो हमें बैठने को मिल जाएगा, कुछ करके निकल जाएगा. नहीं, आपको स्टार्टिंग से वो डिफरेंस भी फॉलो करना है जो कि आपको उस कंपनी तक पहुंचाएगा, बीइंग अ नॉन सीएस गाय. Okay, okay, okay. The next question. This was the most asked question. Do we need expensive laptops for competitive coding? No, no, no. You just need a good internet. That's it. Yeah. Which languages are the best for MNCs like Amazon? I think we have already Yeah, answered this. I answered it. Like it's not a like language is not a barrier at all. Yes. जिस भी language में आप comfortable हो, you can start with it, and आप डेवलप करते करते खुद ही सीख जाओगे. जब क्योंकि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे आओगे वहां पे आप सी प्लस प्लस यूज ही नहीं कर रहे होगे, वहां पे आप इधर जावा जावा स्क्रिप्ट राइट Yeah. इन सब पे काम कर रहे होगे. जब आप सीपी कर रहे होगे तो आप वहां पे समटाइम्स सी प्लस प्लस यूज कर रहे होगे. आप किसी में से किसी ने डेटा इंजीनियरिंग का या डेटा साइंस का प्रोजेक्ट बनाया होगा तो वो पाइथन यूज कर रहा होगा. Yeah. Yeah. सो आप खुद ही करते करते ही सब सीख जाओगे. आपको अलग से किसी चीज पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं होगी कि हाँ मेरे को ये लैंग्वेज अलग से पढ़नी पड़ेगी इस कंपनी में जाने के लिए. Yeah. Moving on to the next question, we have Python versus C++. Which is more preferable and why, be it for CP or MLAI? Yeah, for CP, I'll definitely would say go with C++. For MLAI, go with Python. And why? Why? Because like C++ has definitely like no use in the AI, ML and these things. Like जो कुछ भी बना हुआ है, libraries and whatever written, that is written in Python, and like other languages, Java or you can say Scala, right? But C++ has like not as such support. Like अभी भी हम जो C++ का basically use है, you can say to code embedded systems, right? सो जहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज कह लो कि मशीन्स के साथ भी ज्यादा जहाँ पे इंट्रैक्शंस करने होते हैं राइट. सो वहाँ पे वी आर यूजिंग सी प्लस प्लस एंड फ्यू फ्यू अदर थिंग्स. बाकी लाइक इन चीजों के लिए नोबडी इज यूजिंग सी प्लस प्लस बिकॉज वो सपोर्ट ही नहीं है उन चीजों को करने के लिए. सो दैट्स वाई. एंड फॉर सीपी में कोई भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है डेफिनेटली like STL, like a great strength of C++, जहाँ पे कि you can solve and competitive coding questions very very quickly because good support of good libraries and data structures algorithms. Yeah. Moving on to the next question, we have should we manage both CP and development, or what should we do first? Okay. So this thing definitely first, let's say I'm assuming you are good with programming, you are good with the DSA fundamentals. Now these two things can go hand on hand. Like you don't need to divide any specific percentage, but yep, consistency is very very important. It shouldn't be like that at least 2-3 months you did CP and then you next 5-6 months you did development, because what will happen, you will lose some sort of grip from competitive programming for the next 5-6 months. So make a good consistency between both of them and you can do these things parallel, like divide a specific amount of time. Okay, at least 2-3 hours I'll do CP and next like 5-6 hours I'll focus on my project development, because Yeah, project yeah, yeah. development is something which takes time, right? Yeah, yeah. So that's how you should divide your percentage. Okay. The next question is getting into Amazon difficult by off-campus method if compared to on-campus placements? Difficult part only would be like resume shortlisting for the off campus. But as a fresher, definitely the level of interview rounds, questions would definitely same.
But yeah, difficulty in terms of resume shortlisting, and for that I definitely told you, you have to make your application stand out. And you all know how you can do it: hackathons, open source, good projects, good problem solving, good DSA skills. Okay, 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 okay. Okay, we are done with the questions that we received on the Google form. I think let me check if we have received any questions in call messages. Okay, we have a question from Madhav Mishra that internships are internships important, because I guess our college doesn't allow internship unless and until it's big MNC. It's like definitely important, as you should do it, because that's what I said. And nowadays, like in the COVID, you have this advantage, like every company is doing things remotely. Apply for it. If you get the opportunity, do it remotely. That's it. That's you need to do. Like why? And this is like crazy. Why they are saying like, "Hey, if it's not in big MNC, you cannot do a like internship?" Because there are really really good startups which are providing a good learning environment for the interns. There Yes. you will learn like hell lot of things. So please do not like consider your college statement, otherwise that is going to be difficult for you. Yeah. Okay, and I think we have done with the slides. And guys, if you want the contact of Bhaiya, I will give you the channel link in the disc. Okay, we have. Oh no, we'll give the channel link in the in call messages only, and we'll also drop his LinkedIn profile link. So if you need to contact him, feel free to contact him. I think he'll reply. Yeah, definitely, So definitely. thank you, Bea, for speaking to CodeChef GLB ITM. We are grateful for the time and effort that you took to share your thoughts and experiences in your career. And since we are entering in a new phase of our career, so I believe that we can benefit immediately from the methods that you suggested. So I, Ayush Kumar, on behalf of our club, would like to thank you again for your contribution, and we wish you a very good luck for your future endeavors. Thank you, Bea. And if you want to speak any further, if you have any words for us, please, you can go ahead. Yeah, thank you, guys, from my side. I mean, I love interacting with people. I love guiding them, and giving me this opportunity. Thank you, Ayush, for conducting this event. And I love interacted with you guys. You had some really, really good questions, and yeah, thank you so much. Hope we will cross the bridge again. And like whenever you guys have any kind of doubt, please feel free to ping me on LinkedIn, Instagram, and I'll be like helping you at any time. That's so yeah. Okay, okay. Thank you. It was nice speaking to you. Thank you so much. Yeah. Thank you guys. Bye bye. Thank you. Thank you. Okay, guys, you can leave the meeting.